السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بول کر کے اس کو کہکا لگانے پر مجبور کر دی۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ بلال شاہ گمبھیر آواز پر اس نے آنکھیں میچی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ خطا میرا دل کر بیٹھا ہے، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولتا آیت کو غصہ دلا گیا۔ اپنے دل کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ کیوں نہ دو الزام دل ناداں کو؟ ارادہ دشمنی کا تھا مگر محبت ہو گئی۔ وہ گہری سانس لیتا سنجیدگی سے بولا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پر آیت نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ حکم میری جان، یہ غلام آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے حاضر ہے۔ بالاج اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھا، شاید آیت سے بات کرتے اس کی زبان میں شہد کھل جاتا تھا۔ وہ میں سالار بھائی، بہتر ہوگا تم ہمارے بیچ کبھی بھی اس شخص کا نام مت لو، اسے ہر گناہ کا حساب میں لے کر رہوں گا۔ تم اس بیچ کچھ نہیں بولو گی مگر میری بات؟ بالاج سنجیدگی سے اپنی بات کہہ کر فون بند کر گیا۔ وہ کتنی ہی دیر فون کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ یہ شادی بھی صرف سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ ہاں، اس کا دل بالاج کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر جو اس نے آیت کے ساتھ کیا اس کا دل شاید ناراض تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ سب صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ آیت، ٹھیک ہو تم؟ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر عقیدت نے پکارا۔ ہاں جی، میں ٹھیک ہوں بھابھی، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ اتنے میں جزا اور شفا بھی ایک ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ دونوں، شفا نے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں بھابھی۔ عقیدت نے اس کے دمکتے چہرے پر نظریں جمائے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جزا اداسی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آیت کا گھبراہٹ سے حال ہی خراب تھا۔ عرش خان زادہ ڈراپ گرے 3 پیس پہنے سالار کے ساتھ بینکویٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بزنس سرکل اور فیملی فرینڈز ریلیٹیو سب شامل تھے وہاں۔ تھوڑی دیر بعد عقیدت کو شفا اور جزا دونوں طرف سے تھامے اسٹیج پر لائی تھی۔ ان تینوں کی نظریں اپنی اپنی بیویوں پر اٹک گئی تھی۔ آدم نے اپنی بیوی کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی جو وہاں موجود سب میں نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ جزا کی موجودگی کی وجہ سے گاڑی میں سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، یہاں بھی وہ آتے ہی سب میں گم ہو گئی تھی۔ عرش ایک سیڑھی نیچے اتارتا عقیدت کا کالز کرتا ہاتھ تھامتا وہ اوپر لے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی بے حد حسین لگتی تھی۔ عرش نے اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ابھی بارات آنے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ سالار کی نظریں جزا کے اداس چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ سب بھول کر بس اپنے دل کی مانے اور اس لڑکی کو خود میں بھینچ لے، اسے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ایک بار اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دے۔ آدم کے بلانے پر وہ اپنے خیالوں سے چونکا اور اس کی طرف چل دیا۔ اس کے جاتے ہی جزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ آیت کے پاس آیا تھا۔ سالار کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اپنی چھوٹی سی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ مجھے بھائی، مجھے نہیں جانا، وہ اس کے سینے سے لگی بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ کیوں میری جان، سب کو جانا پڑتا ہے شادی کے بعد، پریشان مت ہو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پھولوں سے اس کی آنسو پہنچے۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا مجھ سے؟ اس نے نظریں چکائے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، کیونکہ جو بھی ہوا وہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور بالاج ایک اچھا انسان ہے، تم خوش رہو گی۔ سالار نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ بارات کے آنے کا شور سن کر وہ آیت کو آرام کرنے کا کہتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے نکلتے ہی آیت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈھول دھماکوں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی اور ان آوازوں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، گولی کی آواز کے ساتھ ایک دم لوگوں کی چیخوں کی آوازیں گونج اٹھی تھی۔ ان آوازوں میں آدم اور عرش کی آوازیں بھی شامل تھی۔ فروا بیگم اور سرزا بیگم کی چیخنے کی آواز پر وہ لڑکڑاتے قدموں سے باہر بھاگی۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے بند ہونے کو تھا۔ سالار خان زادہ بارات کے شور پر باہر آیا تھا۔
जहां बालाज शाह अपनी वजही पर्सनैलिटी के साथ ब्लैक शेरवानी पहने अम्मा जान का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो रहा था। हानिया और फरजाद भी इनके साथ ही थे। पीछे कुछ बाराती भी इनके साथ ही दाखिल हुए थे। आदम खान ज़्यादा अर्श बाकी फैमिली मेम्बरान के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो इसकी बहन का शौहर था। बीच में जो भी गलत फहमियां थी वो बहुत जल्दी इनको सुलझाने वाला था, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी बहन की जिंदगी पर बुरा असर बढ़ने नहीं देना चाहता था। अभी इसने बलाज की तरफ जाने के लिए कदम ही बढ़ाया था कि एकदम धक्का लगने पर नीचे गिरा। एन इसी वक्त गोली की आवाज पर साकित हो गए थे। शादी में बाहर फायरिंग आम बात थी, मगर बैंक्वेट के अंदर इतने लोगों के बीच गोली गोली कौन चला सकता था? सालार ने नजरें उठाकर देखा तो इसे लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में खींच लिया। दुनिया थमना क्या होता है वो इस वक्त सालार से पूछता। एकदम सबकी चीख बुलंद हुई थी। जिसा अपने खून से रंगे हाथों को अपनी बंद होती आंखों से बेयकीनी से इसे देख रही थी। सालार होश में आता इसकी तरफ भागा था। इसने गिरने से पहले ही वो इसे थाम चुका था। इसने अपने लरसते हाथों से सालार का चेहरा छुआ और आंखें बंद कर दी। एकदम कहराम मच गया था। शोर इस कदर ज्यादा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सालार जैसा मजबूत मर्द इस वक्त जिजा का बेजा वजूद अपनी बाहों में लिए किसी जमीन पर हारे हुए जुआरी की तरह बैठा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सब हैरान परेशान से समझने की कोशिश कर रहे थे इतनी सिक्योरिटी में कोई कैसे इस तरह मार के जा सकता था। आदम सालार के बाजुओं से जिसा को उठाकर बाहर भागा था। इससे पहले ही बालाज शाह अपनी गाड़ी का करबुक दरवाजा खोल चुका था। आदम के पीछे ही आदम के बैठते ही वो गाड़ी जन से भगा ले गया। फरवा बेगम अपनी बेटी के खून से लथपथ वजूद को देखकर लहरा कर जमीन बोस हो गई थी। आर्श और आहत, परी का शौहर, बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे किसको संभाले। औरतों की चीखों पुकार ने एक अजीब सा समा बांध दिया था। हर आंख अश्कवार थी। आहद और फरी मिलकर फर्रा बेगम को अस्पताल ले गए थे। उठो सालार, होश में आओ। अर्श ने उसे गुस्से से झिंझोड़ने लगा, जो अभी तक इसी जगह साकित बैठा जहां जिसा गिरी थी। इसे होश में न आता देखकर सालार ने खींचकर थप्पड़ सालार के चेहरे पर मारा था। एक आंसू टूटकर इसके गाल पर बह गया था। अर्श इसे खींचकर अस्पताल की तरफ रवाना हुआ था। इनके कदम मन मन भर के हो गए थे। अपने शौहर को बचाने के लिए वो बच्ची गोली के सामने आ गई। सही कह रही हैं आप। मैंने देखा था इसने सालार को धक्का दिया और फिर खुद गोली का शिकार हो गई। औरतों की बातें आयत सुन होते दिमाग के साथ सुन रही थी। दुल्हन बनी वहीं बैठी चली गई। लोग तरहम भरी निगाह से इन सबको देख रहे थे। शिफा तो मन्नत को गले लगाए थर थर कांप रही थी। अकीदत सजदा बेगम को संभालने की कोशिश करती खुद भी रो रही थी। अम्मा जान भी इनको संभाल रही थी। कौन जानता था खुशियों भरे माहौल में एकदम सिफे मातम बिछ जाएगा। कुछ मेहमान जाना शुरू हो गए थे और कुछ रिश्तेदार इन रोती हुई औरतों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। आप सब लोग घर चले जाएं, मैं यहाँ का इंतजाम संभाल लेता हूँ। इल्ताफ ने आदम के कहने पर इन सबको घर जाने को कहा। आहद भी वापस आ चुका था ताकि इनको घर छोड़ सके, लेकिन इनमें से कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था। इनके जिद करने पर सबको अस्पताल ले गए थे। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। जिसा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था, गोली बिल्कुल पेट के आर पार हुई थी। इस वक्त आदम का सफेद कुर्ता खून में नहाया हुआ था। बाराज दीवार से टेक लगा एक घुटना फोल्ड के खड़ा था। कभी कभी एक नजर सालार पर भी डाल देता, जिसकी हालत काबिले रहम लग रही थी। सालार अभी तक वैसे ही बैठा था, अपने हाथों को देख रहा था। अर्श फरवा बेगम के साथ दूसरे वार्ड में था। इनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। आहत के साथ इन चारों को आते देख सबसे पहले आदम इनकी तरफ बढ़ा था। छोटी अम्मी, आप लोग क्यों आए हैं? प्लीज घर जाएं। तबीयत खराब हो जाएगी आप सबकी। इसने सरसा बेगम को गले लगाकर कहा। वो किस किस को संभालता, सब एक गम से निढाल थे। मैं घर जैसे ही जा सकती हूँ। मेरी बच्ची जिंदगी मौत से लड़ रही है। रोते रोते इनकी आंखें सूज गई थी। आप तीनों घर जाएं। इसने सरसा बेगम को बिठाकर इन तीनों से कहा। मगर हम शिफा ने कुछ कहना चाहा। आंसू अभी तक इसकी आंखों से जारी थे और सोई हुई मन्नत को गोद में उठाया हुआ था। प्लीज घर जाएं, बस दुआ करें। मुझ में हिम्मत नहीं है मैं मजीद किसी को संभाल सकूं। इसने जिस लहजे में कहा, शिफा और अकीदत को इस पर तरस आया था।
आयत तो वहां होकर भी वहां नहीं थी। इसकी नजरें बलाश पर जमी थी, जो खुद भी इसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती बलाश तक आई। इससे पहले कि बलाश सीधा होकर उसके आंसू साफ करता, आयत के हाथ से पुराने वाले थप्पड़ ने इसे शॉक कर दिया। ले लिया बदला, मिल गया सुकून आपको। मेरे भाई से बदला लेना चाहते थे और आज खुद एक बेगुनाह लड़की के कातिल बन बैठे। क्यों किया आपने ये सब? मैं चीखती रही, मेरा भाई बेकसूर है, इन्हें फंसाया गया है। लेकिन आप नहीं माने। आप अपने बदले में इतने अंधे हो गए कि इनको जान से मारने चले थे। मगर आपने आज हम सबको मार दिया। मुझे नफरत हो रही है, नफरत। वो गुस्से से इसका गिरबान पकड़े चीख रही थी। आदम होश में आता इसे खींच कर पीछे कर गया। होश में आओ, पता भी है क्या बोल रही हो? आदम ने सख्ती से इसे कहा। भाई इसने। चुप। बिल्कुल। एक लफ्ज मत बोलना। घर जाओ अभी, ये हॉस्पिटल है। आदम ने सख्ती से कहा तो वो सुबह आंखों से बालाश को घूरने लगी। अकीदत इसे खींचते हुए वहां से ले गई। दुल्हन के लिबास में गम में डूबी इन लड़कियों को देखकर वहां पर कोई तरस भरी निगाहों से देख रहा था। सालार खाली दिमाग के साथ वहां बैठा सबको देख रहा था। बलाश ने अपने लिए सजी संवरी इस दुल्हन को देखा, जो एक बार फिर थप्पड़ मारकर अना इसकी अना को ललकार गई थी। वो इसकी नजरों से ओझल होने तक इसे सुर्ख आंखों से घूरता रहा। अचानक मुंह पर गिरने वाले थे पानी से होश में आया था। हड़बड़ा कर सामने देखा तो फरजाद इसके सर पर खड़ा इसे घूर रहा था। वो तो सालार को मारकर बलाश को फंसाना चाहता था, ताकि वो सब बलाश की जान के दुश्मन बन जाए और इस तरह आयत को इसको मिल जाती। और फातिमा के कातिल का किसी को पता भी नहीं चलता। वो ये सब खुद करना चाहता था ताकि कोई गलती ना हो। इसलिए खुद गया था वेटर का भेस बदल कर। वो बिल्कुल चुप कर इस पर निशाना बांधे खड़ा था। और वो कामयाब भी हो जाता, मगर ऐन मौके पर इस लड़की ने बीच में आकर सारा मामला खराब कर दिया। वो वहां से छुप छुपाते वहां से निकल आया था, मगर अचानक पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया था। जब होश में आया, अपने सामने फरजाद को खड़ा देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरमान नियाजी चीखते हुए बोला। फरजाद ने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा था। वैसे भी इसे अजीब सी चिढ़ थी इस आदमी से। मिसेस सलार खानजादा को क्यों मारने आए थे? इसने संजीदगी से सवाल किया, क्योंकि वो लोग अभी तक अनजान थे कि हमला जिजा पर नहीं, सालार पर हुआ है। क्योंकि इस वक्त सबका ध्यान बारातियों पर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अभी खोलो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरमान नियाजी धमकी पर उतर आया था। तो तुम सच नहीं बताओगे? फरजाद ने संजीदगी से पूछा। मैंने नहीं मारा किसी को। तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरमान ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो ये सोचकर ही परेशान था कि इसने अपने बंदों को आगाह नहीं किया था। ये सब करने से पहले अगर खानजादे और बालात शाह मिलकर इसको दफना भी देंगे तो किसी को खबर नहीं होगी। फरजाद संजीदगी से मुड़ गया और 2 मिनट बाद जब आया तो इसके हाथ में एक इंजेक्शन था। देखो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हें बादशाह से ज्यादा दूंगा। ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। इसकी बात पर फरजाद ने वो इंजेक्शन इसकी गर्दन पर इंजेक्ट करके इसका मुंह बंद कर दिया था। वो इसे छोड़ता इसे तह खाने से निकल आया था और अस्पताल की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर के बाहर आते ही आदम और अर्श डॉक्टर की तरफ लपके थे। सालार अपनी लरसती टांगों से उठा। डॉक्टर का चेहरा इसे खौफजदा कर रहा था। बला शाह की सवालिया नजरों से डॉक्टर की जानिब ही देख रहा था। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? आदम ने धड़कते दिल से पूछा। देखिए मिस्टर खानजादा, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है। इस वजह से आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। मगर पेशेंट को ऑपरेट करके हम गोली निकाल चुके हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप दुआ करें। डॉक्टर के अल्फाज सालार खानजादा लरसले की जल्जले की लत में आ गया था। क्या वो बाप बनने वाला था? अर्श ने इसे थाम कर हौसला दिया। वलाज ने आगे बढ़कर आदम के कंधे पर हाथ रखा था। बहुत मुश्किल से आदम जब्त कर रहा था। इसे सब कुछ अपने हाथ से फिसलता हुआ लगा। सालार खुद को अर्श से अलग करता वहां से निकलता चला गया।
अर्श ने इसके पीछे जाने की कोशिश की मगर आदम ने इसे इशारे से रोक दिया। इसे अकेले रहने दो कुछ वक्त। आदम अफसोस भरे लहजे में बोलता बैठ गया। फरजाद बालाज की तरफ बढ़ा था। कहाँ थे तुम पिछले 3 घंटे से? कहाँ गायब हो? बालाज ने सख्ती से पूछा। भाई थोड़ा बिजी था, मैं बताता हूँ बाद में आपको। फरजाद ने संजीदगी से जवाब देकर अर्श की तरफ देखा। डॉक्टर ने क्या बताया? इसने बालाज से पूछा। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। तुम पता लगाओ ये हरकत कौन कर सकता है। बलाल संजीदगी से कहकर घर में फोन मिलाने लगा ताकि अम्मा जान का हाल जान सके। मैं पता लगा चुका हूँ भाई, मुजरिम भी कैद में है। इसकी बात पर बलाज ने झटके से सर उठाकर देखा। जब गोली चली ऐन उसी वक्त मैंने अरमान न्याजी को वेटर के लिबास में भागते देखा और वो जल्दी से अपनी गन भी छुपा रहा था। मैं इसके पीछे भागा और इसे बेहोश करके अपने ठिकाने पर छोड़ कर आ रहा हूँ। मुझे शुरू से ही ये बंदा बहुत ज्यादा मशकूक लगता था। और इसकी बात सुनकर बलाज इसे खींचकर सीने से लगा चुका था। वेल डन मेरे भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसने खुशी से फरजाद की पीठ थपथपाया था। आदम जो फरवा बेगम को देखने गया था, इसको आता देखकर बलाज इसकी तरफ बढ़ गया। अर्श को भी बुलाया था इशारे से। तो जैसे जैसे बलाज इनको बताता गया, इनका चेहरा गुस्से से खतरनाक हद तक लाल हो गया था। इसने ये भी बताया कि आयत को भी एक बार अरमान रियाजी अगवा कर चुका था, जहां से बालाज ने इसे बचाया था। अरमान नियाज़ी के नाम पर अर्श का दिमाग ठटका था। वो ये नाम पहले भी सुन चुका था, मगर जिज़ा के किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। मैं इसको जान से मार दूंगा, मेरी बहन पर गोली चलाने की हिम्मत कैसे हुई? आदम गुस्से से पागल हो रहा था। बिल्कुल बहन के गुनाहगार को माफी किसी सूरत में ही। और अगर मुझे सालार को मारना होगा तो सबके सामने मारूंगा। बुज़दिल नहीं हूं मैं। इतनी हिम्मत रखता हूँ कि अपने मुजरिम को आंखों में आंखें डालकर सजा दे सकूं। और ऐसा वक्त आने पर मैं करूंगा भी। मगर एक औरत को तकलीफ देना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। अपनी बहन को ये बात बता देना। बलाल संजीदगी से बोलता इन्हें बहुत कुछ जता गया था। तुम लोगों का मुजरिम हमारे पास है, जब चाहोगे तुम लोगों के हवाले कर देंगे। बलाल संजीदगी से बोलकर फरजाद को इशारा करता वहां से निकल गया। इसके अंदर धुआं सा भर गया था। वह अस्पताल से निकल तो आया था, मगर समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। वो शिकस्ता हाल लिए वहीं रखे एक बेंच पर बैठ गया। वह बिखरा हाल लिए किसी फकीर के मानिंद लग रहा था। खून से सनी इसकी सफेद शर्ट बिखरे बालों के साथ वो बहुत काबिले रहम लग रहा था। इसने हमेशा अपने लफ्जों के साथ साथ अमल से भी इसे तकलीफ दी थी। वो तो बचपन से ही इसकी दीवानी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कैसे इश्क में गिरफ्तार हुई इसे खबर भी नहीं हुई। वो लड़की इसके हिस्से की मौत को अपनी तरफ मोड़ चुकी थी। बलाज जो अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकला था, इसे इस तरह शिकस्ता हाल में बैठा देखकर एक पल को रुक गया। अगले ही पल नफरत से चेहरा मोड़कर वो अपनी गाड़ी जन से इसके सामने से भगा ले गया। न जाने से वहां बैठे कितना वक्त गुजरा था। आयुष के पुकारने पर वो होश में आया। उठो, यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष ने इसे उठाया। वो नाराज हो गई है मुझसे, सालार खोए खोए लहजे में बोला। तो इसे मना लो, क्या बैठने से वो मान जाएगी? अर्श ने इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक तरफ बहन थी, दूसरी तरफ साथी, दोस्त, भाई, सब कुछ। वो नहीं मानेगी। मैंने आज तक इसे कोई खुशी नहीं दी, बस अजियत दी है। सालार तकलीफ से आंखें मीच गया। अर्श ने इसे खुद में भेज लिया। वो तुमसे मोहब्बत करती है। ऐसा नहीं हो सकता वो तुमसे ज्यादा देर नाराज रह सके। अर्श ने इसे थम कर कहा। वो इसलिए अंदर आया तो जिजा को आईसीयू शिफ्ट किया जा चुका था। इसने शीशे के पार से इसको देखा, जो मशीनों में जकड़ी हुई दुनिया से बेखबर बेसुध पड़ी थी। इसकी आंखें छलक पड़ी। इन लोगों ने इसके जवान मर्द और इन लोगों ने इसे जो इन मर्द को बच्चों की तरह रोते देखा था, जवान मर्द को बच्चों की तरह रोते देखा था। वो जिसा पर नजरें जमाए किसी बच्चे की तरह रो रहा था। आदम आगे बढ़ा और अपने सीने से लगा लिया। भाई से कहे लौट आए मेरे पास, मैं नहीं जी पाऊंगा। इसे कहे ना नाराजगी छोड़ दे। मैं झूठ बोलता था, मैं इसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं मर रहा हूँ इसे ऐसे देखकर। वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? वो क्यों मेरे सामने आई? इससे इसने मेरे हिस्से की गोली खाई है। भाई से कहे मुझे माफ कर दे। वो इस तरह रो रहा था कि फरजाद जो इससे नफरत करता था, इसकी भी भीगी आंखें नम हुई थी।
اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے والا شخص کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کر سکتا ہے؟ وہ بس سوچ ہی سکا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس وجیح شخص کو روتے دیکھ حیرت زدہ تھے۔ اچانک اندر موجود نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور ڈاکٹر کو آواز لگا کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ وہاں سب پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی سالار اور آدم اندر چلے گئے تھے۔ وہاں سالار کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ باہر جائیں، پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے۔ نرس نے آ کر ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ بھائی مجھے یہاں رہنے دے پلیز، سالار نے گھبرا کر کہا تھا۔ جزا کی حالت دیکھ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ لوگ جائیں باہر، یہاں نہیں رک سکتے، ڈاکٹر نے سختی سے کہہ کر ان کو باہر نکالا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی فرجاد اور عرش پریشانی سے اس کی طرف آئے تھے۔ جزا ٹھیک ہو جائے گی، بس تم دعا کرو۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بس اللہ، دعا اللہ ہی تو اس کی دعا قبول کر سکتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسپتال میں موجود مسجد کی طرف بھاگا تھا اور خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا۔ کہا تو بس اتنا، اسے مجھ سے مت چھین اللہ، تو اسے لوٹا دے۔ آنسو زاروں قطار بہہ کر اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ خانزادہ ہاؤس میں ماتم کا سما تھا۔ کل تک جہاں سب چہچہاتے پھر رہے تھے، آج سب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آیت اپنے کمرے میں بکھرے بالوں کے ساتھ ابھی تک کل والے حلیے میں بیٹھی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ وہ کیسے ایک قاتل سے محبت کر سکتی تھی جو اپنے انتقام میں ایک معصوم لڑکی کو نشانہ بنا گیا تھا؟ جزا کی بہن تھی، بچپن سے جوانی تک انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ اسی کی وجہ سے بالاج کو موقع ملا تھا جزا کو مار کے سالار سے بدلہ لینے کا۔ آیت ایسے روتی نہیں ہے، اٹھو دعا کرو، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دیکھنا جزا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ عقیدت اسے کل والی حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ایک سادہ سا سوٹ نکال کر آیت کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم بھیجا۔ وہ بھی خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شرمندہ سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ فروا بیگم ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ فریحہ اور سجدہ بیگم ان کے ساتھ ہی تھی۔ گھر میں صرف شفا، عقیدت، اریب اور منت ہی موجود تھے۔ بالاج اماں جان کی مل کر فرجاد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ اماں جان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس چاہیے تھے، جس کے لیے اسے مجبوراً بنا بتائے فرجاد کے کمرے میں جانا پڑا۔ ویسے بھی اس کے کمرے میں فائلز وغیرہ کا سیف الگ سے تھا، جس کا لاک صرف اسے فرجاد کو ہی پتا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا اور سیف میں سے اس نے اپنی مطلوبہ فائل نکال کر جیسے ہی مڑنے لگا، وہ ٹھٹک کر رکا۔ جس چیز پر اس کی نظر پڑی ایک دم وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ وہ ہمیشہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا نکلی؟ اسے اپنے پیروں پر جمے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ٹیبل پر ہاتھ رکھا۔ آخر کار سب کی دعاؤں اور ڈاکٹرز کی محنت سے معجزاتی طور پر جزا کو ہوش آ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب اللہ کے حضور شکرانے کی نفل ادا کر کے آئے تھے۔ سب سے پہلے سجدہ بیگم اور فروا بیگم کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ چکی تھی مگر دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک غنودگی میں تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا چہرہ سرد ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے آدم نے آگے بڑھ کر جزا کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولے۔ سجدہ بیگم اور فروا بیگم منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ امی، اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث ایسا نہ کر سکی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ فروا بیگم اس کا چہرہ چومتی پوچھنے لگی۔ مگر میں ٹھیک ہوں، وہ اٹک اٹک کر جواب دیتی دروازے کی طرف متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سالار، اس نے سوالیہ نظروں سے آدم کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر ہی ہے، آتا ہی ہوگا۔ آدم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی آپ لوگ اب باہر جائیں اور رونا بند کر دیں، دیکھیں بالکل ٹھیک ہے جزا۔ آدم ان دونوں کو پچکارتا باہر آیا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے جزا پریشان ہو رہی تھی۔ باری باری سب جزا سے ملے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اتنے دھتکار کے بعد بھی نہ جانے کیوں وہ اسی شخص کے انتظار میں تھی۔ اسے اپنی بے ہوشی میں اس کی چیخیں، رونا بولنا سب سنائی دیا تھا مگر وہ پگلی اب بھی وہ سب اپنا خواب سمجھ رہا تھا۔
जैसे ही घर में खबर पहुंची सब आहत के साथ अस्पताल आ गए। आई एम सॉरी। आयत ने जिजा का हाथ अपने हाथों से लगाकर रोते हुए कहा। इस वक्त सिर्फ लड़कियां ही इसके पास थी, जबकि आदम चेंज करने घर जा चुका था। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जिजा ने हैरानगी से पूछा। परी भी हैरान थी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना वो बारात लेकर आता ना भाई से बदला लेने के लिए तुम पर गोली चलाता। वो रोते हुए बोली। जिसा ने ना समझी से उसे देखा। तो किस बात की बात, कैसी बात कर रही? दर्द की वजह से इसे बोलने में भी दुश्वारी हो रही थी। बालात शाह। आयत ने दांत पीसकर इसका नाम लिया। जिसा ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। इसे याद आया था जब बालात शाह अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया था। तब सभी इनकी तरफ मतवज्जा थे, वो भी अकीदत के पास से उठकर वहीं जा रही थी। मगर इसकी नजर वेटर के लिबास में मलबूस अरमान नियाजी पर पड़ी थी, जो चेंजिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा हाथ में ट्रे उठा इसके नीचे गन छुपाए सलार शाह का निशाना बांधे खड़ा था। वो अरमान नियाजी का नाम नहीं जानती थी, मगर वो उसे फातिमा के हादसे वाली रात इस फार्म हाउस से निकलते देख चुका था। इसने तो सालार और अर्श की बातें सुनी थी, जिसमें वो दोनों फातिमा के कातिल को मारने का जिक्र कर रहे थे। फिर कैसे वो जिंदा था? वो ज्यादा देर सोच न सकी। इस सोच ही इसकी जान निकाल रही थी कि वो शख्स सालार को मारने वाला। वो अपनी पूरी कुवत से भागी थी और सालार को धक्का दिया था। एकदम कोई गर्म लोहे की चीज पेट में घुसती हुई महसूस हुई। इसके बाद इसने सालार को खुद की तरफ भागते देखा। इसके बाद कुछ याद नहीं। आप ही? बलाज भाई ने नहीं मारा, इसने फरी को देखकर कहा। सबने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।